मरहूम के 3 बेटे थे, मसलन मरहूम के 3 बेटे थे, एक का नाम अमर था। ये अमरू नहीं होता, लोग उर्दू वाले अमरू पढ़ते हैं, अमर लिखा जाते हैं, वो आगे होती है अमर। अगर उमर लिखा जाए तो वो नहीं लिखी जाती। और तहरीर में, अरबी में, उर्दू में भी अमर हो तो वाव होती है साथ, और जैद होती है, जैसे खुद के अंदर वाव जैद होती है। अमर, एक बेटे का नाम था अमर, दूसरे का नाम था बकर, तीसरे का नाम था खालिद। लिखा? तीनों बेटे बाप की जिंदगी में फौत हो गए। लिखा? लेकिन अमर 3 बेटियां छोड़ी, अमर ने 3 बेटियां छोड़ी, खुद तो फौत हो गया। अब ये लिखते जाएं तो बड़ा लंबा होता जाएगा। और इसी तरह बकर और खालिद ने भी 3 बेटियां छोड़ी। जिनका नक्शा ये है। अब नक्शा मैंने कहा सेंड करें, आप कहते बाद में होगा, है दिया हुआ है हाशिया में। हाँ बिल्कुल सही है, दिया हुआ है। अब बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब नक्शे को देखें। अब बनात के पास है नक्शा, तुम्हारे पास सिराजी है? एक सिराजी दे दो ना जिसके ऊपर नक्शा है, खोल के दे दो। ये सिराजी दी आपने? दे। अच्छा, उसमें नक्शा देखें, मैयत लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है फरीक अव्वल, आगे लिखा है फरीक सानी, आगे लिखा है फरीक सालिस, मैयत के ऊपर लिखा हुआ जैद, मरने वाला उसका नाम है जैद। अब फरीक अव्वल के नीचे देखें लिखा हुआ इब्न, इब्न के सामने लिखा हुआ है कौसैन में अमर, यानी इस बेटे का नाम था अमर। अभी मैंने बताया पहले बेटे का नाम अमर। नक्शे में है तुम्हारे? बनात को समझ आ रही है कि बदल नहीं? अमर है। अब उसके नीचे तीर का निशान है, अमर के नीचे एक इब्न है, एक बिन्त है, देखा? फिर उस इब्न के नीचे तीर का निशान है, इब्न है और बिन्त है। फिर उस इब्न के नीचे
تیر کا نشان ہے اور صرف بنت ہے. دیکھا؟ اب 3 بنات ہیں. اوپر والی بنات اس کو کہتے ہیں الیہ من الفریق الاول، فریق اول کی اوپر والی لڑکی بیٹی. درمیان والی یہ دوسری جو بنت لکھی ہوئی ہے اس کو وسطی کہیں گے، وسطی فریق اول. اور جو آخری لکھی ہوئی ہے اس کو کہیں گے سفلا فریق اول. سمجھ آئی؟ اب فریق ثانی کو دیکھیں. فریق ثانی کے آگے لکھا ہوا ہے بکر. بکر بھی فوت ہو چکا، اس کے آگے بیٹا ہے، اس کی بہن نہیں ہے. اس بیٹے کے پھر اولاد ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. تیر کا نشان ہے، یہ ہے الیہ فریق ثانی. پھر اس بیٹے کے نیچے تیر کا نشان ہے، ابن اور بنت ہے. اس کے بھی 2 ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. اس کو کہتے ہیں وسطی فریق ثانی. اور پھر اس بیٹے کے نیچے تیر کا نشان ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے صرف بنت، یہ ہے سفلا فریق ثانی. سب دیکھ لیا؟ اب فریق ثالث کو دیکھیں. ابن خالد، اس کے نیچے تیر کا نشان ابن، پھر تیر کا نشان ابن. تیسرے درجے میں جو ابن ہے اس کے نیچے تیر کا نشان ہے. اس کی 2 بچے تھے، ایک ابن ایک بنت. دیکھی؟ اب یہ بنت الیہ فریق ثالث، الیہ کہتے ہیں اوپر والی. پھر تیر کا نشان ہے نیچے ابن اور بنت، اس کو کہتے ہیں وسطی فریق ثالث. پھر تیر کا نشان ہے آخر میں سفلا بنت سفلا فریق ثالث. یہ ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلی لڑکی جو زندہ، یہ لڑکیاں سب زندہ فرض کر رہے ہیں، یہ سارا مفروضہ ہے، تشبیہ ہے نا، تمہارا ذہن کو تیز کرنا ہے. پتہ تیز ہوتا ہے کہ اب سب سے پہلے درجے میں عمر کی بیٹی ہے جس کو کہیں گے ہم الیہ فریق اول. اس عمر کی بیٹی کے محاذی کوئی اور بیٹی نہیں ہے. وہ ہے؟ اچھا، جو عمر کی بیٹی ہے یہ بنت الابن ہے، ایسے ہی ہے نا، عمر کی بیٹی ہے نا. میت تو زید ہے، زید مر گیا، لڑکیاں موجود ہیں. پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ بنت الابن موجود ہے، عمر کی بیٹی، اس کو کہیں گے الیہ فریق اول. اس کو کتنا ملے گا؟ اس کے درجے میں کوئی اور بنات نہیں ہے. اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اچھا، نیچے فریق ثانی کی ایک بنت ہے اور فریق اول کی بنت ہے. یہ دوسرے درجے میں نیچے موجود ہیں. 2 بیٹیاں ہیں، ایک عمر کی بیٹے کی بیٹی اور ایک خالد کے بیٹے کی بیٹی. یہ 2 بیٹیاں کھڑی ہیں. یہ مساوی فی درجہ ہے، برابر ہے. نصف تو لے گئی تھی نا بنت الابن، ان کا سلسان ہم نے پورا کرنا ہے. سلسان جب پورا کرنا ہے تو ان 2 بیٹیوں کو ہم سدس دیں گے. پیچھے پڑا تھا بیٹی کو نصف ملے تو نیچے والی کو سدس ملے گا. تو نیچے 2 کھڑی ہیں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا. لڑکا کوئی نہیں ہے، ان کو سدس ملے گا. سمجھ کہ نہیں آئی سمجھ؟ دوسرے درجے میں 2 بنت ہیں، ان کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹے سارے فوت ہو چکے ہیں نا. ان کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اب آ جائیں تیسرے درجے میں.
बिंत, पहले दर्जे की बिंत, इसको कहेंगे सुफरा फरीक अव्वल। दूसरे दर्जे में बिंत है, इसको कहेंगे वुस्ता फरीक सानी। तीसरे दर्जे में बिंत है, इसको कहेंगे उलिया फरीक अव्वल। ये 3 लड़कियां खड़ी हैं। समझ आ गया? अब सुल्तान तो ले गई ऊपर वालियां, सुल्तान है इनका हिस्सा, सुल्तान से ज्यादा इनके लिए नहीं है। अब ये महरूम हो रही हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये भी एक दर्जा नीचे है, लेकिन है तो उसकी लड़की हैं। अब हमारे उलमा ने ये कहा, ये जो महरूम हो रही हैं, तीसरे दर्जे में फरीक अव्वल की उलिया, फरीक सानी की वुस्ता, फरीक सालिस की उलिया, फरीक सानी की वुस्ता, 3 लड़कियां थी ना। इत्तेफाक इस दर्जे में एक लड़का मौजूद है, मैयत का एक लड़का। ये ऊपर वाली जो हिस्सा ले रही थी ज़वील फुरूज, उनको तो कुछ नहीं कहेगा, वो तो अपना हिस्सा ले लेगी। सुल्तान पूरा हो गया, निस्फ ले लिया ऊपर वाली ने, फिर सुल्स ले लिया नीचे वाली ने। अब नीचे वाली जो 3 बेटियां थी, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, उनके मुआजी एक लड़का फर्ज करते हैं। 3 बनात थी ना, 3 बनात थी। अब इनके दर्जा में पहले फरीक का तो कोई लड़का ही नहीं है, दूसरे फरीक का लड़का है, तीसरे फरीक का भी लड़का है। इस किसी एक लड़के को आप फर्ज करें, वो भी जिंदा है। तो अब वो जो मुसावी फी दर्जा लड़का है, इन तीनों को असबाब बिल गैर बना देगा। ये 3 मालूम हो रही थी। अब सुल्तान मुकम्मल हो गया, सुल्तान मुकम्मल हो जाए तो सुल्स बचता है। बाकी सुल्स दे रहे थे हम असबात को, असबात था कोई नहीं, लड़कियां थी। लेकिन नीचे की लड़कियां जो महरूम हो रही थी, उनको सुल्स नहीं दे सकते थे हम, क्योंकि ज़वील फुरूज होने की हैसियत से बनात का हिस्सा सिर्फ सुल्तान होता है। तो अब वो बेचारी महरूम हो रही थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा बना, फर्जी सूरत है कि उनके दर्जे में एक लड़का आ गया, तो उसने अपने दर्जे वाली लड़कियों को असबाब बिल गैर बना दिया, और वो जो सुल्स है इनको मिल जाएगा। एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं, तो 5 हिस्से करेंगे उनके, लड़कियों को 1-1 और लड़के को 2, वो सुल्स तकसीम हो जाएगा। भाई समझ आया तुम सबको लड़कियों? अच्छा, अब यही 3 बनात थी, इनके दर्जे में तो कोई लड़का नहीं है। 3 लड़कियां जो महरूम हो रही थी, उलिया फरीक अव्वल की, वुस्ता फरीक सानी की, और उलिया फरीक सालिस की, सुफरा फरीक अव्वल की, वुस्ता फरीक, तीनों लड़कियां महरूम हो रही थी। इनके दर्जे में हमने एक लड़के को जिंदा फर्ज किया। अब इनके दर्जे में लड़का, वो भी फौत हो चुका है। अब नीचे 2 बिनतें, एक बिनत है फरीक सानी की, उसके नीचे दर्जे में, और एक बिनत है फरीक सालिस की। देख रहा हूं, ये 2 हैं। ऊपर 3 महरूम हो रही थी, ये भी महरूम हो रही थी। अब इनके दर्जे में एक बेटा खड़ा है, अब ये अपने दर्जे की बहनें नहीं होती, वो दर्जा होता है, चचाजाद बहन होते हैं, सगी बहनें नहीं होती। ये 5 लड़कियां थी, 3 ऊपर वाली, 2 नीचे वाली, 5 लड़कियां हैं। एक लड़का हमने जिंदा मान लिया, तो वो एक लड़का इन 5 को असबाब बिल गैर बना देगा। कोई समझ आया? ये 5 को असबाब बना देगा। अब एक ही महरूम हो रही है, कौन सी? फरीक सालिस की, फरीक सालिस की सुफला, उसको कुछ नहीं मिल रहा। अब उसके मुहाजी कोई लड़का है नहीं, मैयत का, मैयत की शाख का, मैयत का मतलब मैयत की शाखों का कोई लड़का ही नहीं, तो ये महरूम हो जाएगी। बाकी सब 9 लड़कियां थी, उनमें से 3 लड़कियां
ज़वील फरूज एक लड़की और फिर 2 लड़कियां 3 लड़कियां ज़वील फरूज होने की हैसियत से अपना हिस्सा ले चुकी हैं, बाकी असबाबुल गैर बन गई। अब लड़का अगर पहली लड़कियों के साथ हम फर्ज करें, पहली लड़की के साथ एक लड़का जिंदा है, तो नीचे के लड़के भी महरूम, लड़कियां भी महरूम। कुछ समझ आया? अब हम कहते हैं कि फरीक अव्वल का जो बिन्त थी उसका सका भाई मौजूद है इब्न। अब सका भाई मौजूद है तो दूसरे दर्जे के अंदर जो, अच्छा सिर्फ सका भाई मौजूद है, फरीक सानी या सालिस के बेटे नहीं हैं, तो अब नीचे की सारी लड़कियां मारूम हो जाएंगी, नीचे के लड़के भी मारूम हो जाएंगे, क्योंकि असवात के अंदर ये होता है कि जो अकरब होता है वो सब कुछ ले जाता है, अबद मारूम हो जाता है। अकरब का माना करीबी, तो वो बेटे की वजह से अपनी बहन को तो असवा बना देगा, लेकिन यह है कि आप बेटा जो है जो ये रुकावट बन जाएगा नीचे वाली लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, उनको कुछ नहीं मिलेगा बेचारी। ये अब अगर आप ज़हीन हैं, जैसे कि इसने कहा है कि हम तल्ब इल्म के ज़हन को तेज कर रहे हैं छुरी से छुरी को तेज किया जाता है ना पत्थर की उससे, तो फिर आप ये सारी सूरतें निकालें। एक में फर्ज करें, जैसे मैंने कहा पहले दर्जे में बिन्त मौजूद है, फिर दूसरे दर्जे में, फिर तीसरे दर्जे में लड़कों को बिल्कुल मनफी कर दें, फिर हर एक दर्जे में एक लड़के को जिंदा रखें। अब मसाइल निकालें, अब लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहरहाल यह है कि कुछ लिख कर ले आए। मैं सिर्फ एक सूरत या 2 सूरतें आपको लिख पाता हूँ। लिखें मैयत इसकी मैयत लिखें बिन्तुल इब्न, मैयत बिन्तुल इब्न लिखा, बिन्तु इब्नुल इब्न, बिन्तु इब्नुल इब्न। आपकी सहूलत के लिए लिख दें आगे अख ऐनी, मसला रद्दिया बन जाता है ना, तो इसलिए अख ऐनी। अब यहां 2 लड़कियां हैं, एक बिन्तुल इब्न है, एक बिन्तु इब्न, एक पोती ये होगी, ऐसा है ना। एक और लिखें मैयत बिन्तुल इब्न बिन्तैन इब्नुल इब्न, बिन्तैन आगे लिख लें अख इल्ली, अख इल्ली बाप की जानिब से भाई। एक और मसला लिखें मैयत बिन्तुल इब्न बिन्तैन इब्नुल इब्न बिन्तैन इब्नुल इब्न बनाते सलासा, बनाते सलासा इब्नो इब्नुल इब्न, इब्नो इब्नुल इब्न बनाते सलासा, गलत करके इब्न नहीं कहा जाता, बिन तो इब्नुल इब्नुल इब्न,
बिन्त कहा जाता है ना बेटी को, पता नहीं पहले इब्न कहते रहे, बनात है ना, बनाते सलासा बिन्तो इब्नुल इब्नुल इब्न, बिन्तो इब्नुल इब्न, जब बनाते सलासा बिन्तो, बनाते सलासा का मुराद है तीनों बेटियां है ना, बिन्त कह देंगे आप, तीनों बेटियां, बनाते सलासा इब्नो इब्नुल इब्न भी कह सकते, यानी तीनों बेटियां चौथे दर्जे की हैं। लिख लिया? अब लिखें, यही सूरत लिखें, बिन्त बिन्तैनुल इब्न बनाते सलासा इब्नो इब्नुल इब्न इब्नो इब्नो इब्नुल, अभी बता चुका ना ये सारी सूरत। अब नीचे एक लड़का हम साबित करते हैं, लिखें इब्नो इब्नो इब्नुल इब्न, इब्नो इब्नुल इब्नो इब्नो इब्नुल इब्न चौथे दर्जे में उन बनाते सलासा के साथ था। लिख लिया? अब एक सूरत जो फरीक सालिस का बेटा है ना, दो बेटियां हैं उसके दर्जे में, वो आप लिख लेना और फिर मसला निकालना। ये है, इस लिख लिया मसला, इस मसले को मसला तशबीब कहते हैं। लिख लिया? अब एक मसले तो ये मनात के हवाले से हमने लिखा दिए हैं ना, अब एक जनरल मसाइल लिखें। मसला जो पढ़ चुके हैं आप, ज़ौज, एक मैयत है उसका ज़ौज, ज़ौजा, हैं नहीं में लिखी पे, ज़ौजा एक मैयत है खुशकिस्मत, उसके वारिस एक ज़ौज भी है, एक ज़ौजा भी है। सारे लिखे सिर के जिक्का करके ना लिख रहे हैं। हमारे पास मसाइल पूछने वाले आते हैं ना, इसी किस्म के सवाल होते। लाड़काना मशहूर था, पीर मशहूरी साहब अल्लाह ताला बख्शे उनको, बहुत बड़े वली अल्लाह थे। लाड़काना में उनका बहुत बड़ा मदरसा था और वहाँ इल्म मिरास पढ़ाया जाता था। तो एक मौलवी साहब ने मुझे, आगे आ रहा है मुनासका का मसला, 30 या 50 दर्जे का मैयत, एक मर चुका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 50 दर्जे गुजर चुके हैं, जायदाद तकसीम नहीं हुई। फिर उनके जो वारिस हैं वो सैकड़ों में हो गए हैं। अब यह है कि वो कहते हैं कि हमें मसला बताएं, कितने जिंदा हैं, कितने मर गए हैं, और लिखना पड़ता है अल अहया अल अमवात, बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा, उस बेचारे ने तो मेरा इम्तिहान लिया ना, क्योंकि मुझे पीर मशहूरी ने कहा था, यहाँ अमजदिया में मुझे 400 रुपया तनख्वाह मिलती थी। उसने कहा था हम आपको 1500 रुपये तनख्वाह देंगे, अब लड़काना आ जाए। मैंने कहा छोड़ें लड़काने को, हम भी रहेंगे। तो उसने वहां अमजदिया में ये मसला मुझे भेजा, उनके मुफ्ती साहब ने, तो हमने निकाला। तो वो ऐसा बेचारा, उसने तस्वीर तो बनाई क्योंकि मफरूजा था, तो उसने जो मुर्दा थे उनको जिंदू में लिख दिया, जो जिंदा थे कभी मुर्दू में लिख दिया। तो फिर मैंने मसला निकालने के बाद मैंने उस पर चोट की, मैंने कहा कम अज कम
آپ صورت مسئلہ تو صحیح بناتے ہیں، جیسے ابھی صورت مسئلہ ہے میں لکھا رہا ہوں، میت پھر آگے کا زوج پھر کہا زوجہ لکھ رہے ہیں سارے، تو عقل تو ہونی چاہیے نا۔ چلو جی چلو جی، زوج بہانے نہیں بنایا تو بنی عقل نہیں ہے، زوج لکھا، زوج لکھا تھا نا، زوج کے بعد آپ لکھ دیں پڑھ چکے ہیں بنت اور بنت الابن، اخ عینی، ایک اور مسئلہ لکھیں، اب جد اخیفی زوجہ بنت بنت الابن۔ چلو ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے انہی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل باقی سبق پڑھیں گے۔